بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بكم بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون صدق اللہ العظیم۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ یہ تمہاری دولت اور یہ تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 34 سے 38۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جب بھی اپنا رسول اور پیغمبر کسی قوم کے پاس بھیجا تو انہوں نے براہ راست اسے نہیں ٹھکرایا، نہ اس کا انکار کیا، بلکہ آگے سے دلیل یہ دیتے تھے انکار کی کہ تم تو ایک عام سے آدمی ہو، ہم صاحب حیثیت ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہم اپنے ملک اور قوم کے پاورفل لوگ ہیں، اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے، مال و دولت ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو پھر وہ ہمیں عذاب کیسے دے دے؟ اگر وہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو یہ سارا کچھ اس نے ہمیں دیا کیوں؟ خوش تو وہ تم سے نہیں ہے جو تمہیں نہیں دیا۔ یہ دلیل آج بھی جتنے مترفین ان کو کہتے ہیں قوموں میں پائے جاتے ہیں، اشرافیہ، جن کے قبضے میں دولت کے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر خداوند عالم ہم سے ناراض ہے تو یہ سب کچھ اس نے ہمیں دیا کرتا ہے، یعنی یہ سارا کچھ اتنی بڑی نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ وہ اس کو خداوند عالم کی خوشی کی دلیل بناتے ہیں۔ ان آیات کے پس منظر میں
मुफस्सिरीन ने ये मुख्तसर सा वाक़या लिखा है। काना रजुलान शरीकैन खरजा अहदुहुमा इला शाम व बक़ियल आखर। दो दोस्त मक्के में रहते थे, उनमें से एक शाम चला गया, वहाँ अपनी तिजारत वगैरह करता रहा, दूसरा मक्के में रह गया। फलम्मा बुइसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतबा इला साहिबिही। जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत से सरफराज किया और इसकी खबर उस शख्स को, उस दोस्त को पहुंची जो शाम में पहुंचा हुआ था, तो उसको खत लिख के पूछता है, यसअलुहु मा अमिल, पूछता है कि हमारे शहर में जिस आदमी ने नबुव्वत का दावा किया है उसका क्या मामला है। अब ये दोस्त जो मक्के में रहता था उसने जवाब लिखा, फकातबा इलैहि अन्नहु लम यतबअहु मिन कुरैशिन अहदुन इल्ला रिजालतुन नासि व मसाकीनिहिम, कि ये जिस आदमी ने नबुव्वत का दावा किया है, कुरैशियों में से तो किसी ने इसकी पैरवी इख्तियार नहीं की है, जो सरदार लोग हैं, लेकिन मक्का शहर के जो अदना किस्म के लोग और मिस्कीन और गरीब किस्म के लोग हैं, सिर्फ वही इसके पीछे लगे। फतारक तिजारतहु सुम्मा अता साहिब, वो दोस्त शाम से तिजारत अपनी छोड़कर अपने दोस्त के पास मक्के आया। फ़क़ाल दुल्लनी अलैहि, उसने आके इसे कहा कि मुझे उस शख्स का रास्ता बताओ, वो कहाँ रहता है जिसने नबुव्वत का दावा किया। वकान यक़रा बादल कुतुब, और ये दोस्त शाम में रहते हुए आसमानी किताबें तौरात और इंजील का भी मुताला किया करता था। फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इला मा तदऊ, शाम से चला, तिजारत छोड़ी, जुस्तजुए हक़ में पहुंचा है। नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होकर पूछता है कि आप किस चीज़ की दावत देते हैं। फ़क़ाल इला कज़ा व कज़ा, के फुला फुला चीज़ों की तरफ दावत है, खुदावंद आलम की तौहीद की तरफ, अपनी रिसालत की तरफ, आखिरत की तरफ, जो मोटे मोटे उसूल हैं। फ़क़ाल अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शख्स ने ये बात सुनते ही कलमा पढ़ दिया कि मैं गवाही देता हूँ कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। फ़क़ाल वमा इल्मुका बिज़ालिक, हुजूर ने पूछा कि तुझे इस चीज़ का इल्म कैसे हुआ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। क़ाल इन्नहु लम युबअस नबिय्युन इल्ला अतबअहु रिजालतुन नास व मसाकीनिहिम। उस शख्स ने कहा कि मैंने पहली किताबें पढ़ी हैं, गुज़श्ता अंबिया के पैरोकार जो थे उनमें अक्सरियत उनके मुआशरे की अदना लोगों की होती थी और गरीब लोगों की। और आज आपके भी मक्का में पैरोकार गरीब और मिस्कीन लोग ही हैं। ये बड़े बड़े सरदार और खाते पीते लोग, इन्होंने आपका इनकार किया है और आपका रास्ता रोका है। अब ये अल्लाह जो फरमाता है कि जिस माल पर और औलाद पर तुम फख्र कर रहे हो, ये तो हमारी इनायत है। जिसे चाहते हैं खुला रिस्क देते हैं, जिसे चाहते हैं तंगी से देते हैं। इसलिए मालो दौलत जो है ये मेयार नहीं है हक को परखने का। ये दुनिया और दुनिया की दौलत, इसके बारे में एक फारसी शायर कहता है,
आब दर कश्ती हलाके कश्ती است आब अंदर जेरे कश्ती पुश्ती است। पानी अगर कश्ती में, समुंदर और दरिया में कश्ती और शिप चल रहा, अगर पानी उस शिप के अंदर भर जाए तो वो शिप की तबाही और बर्बादी का सबब होता है। लेकिन वही पानी जब तक शिप के नीचे रहे, कश्ती के नीचे रहे, तो वो उसकी पुश्तिबानी करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसे तैराता हुआ लेके जाता है। ये दुनिया की दौलत, अगर तो हमने इसको अपने नीचे रखा कश्ती की तरह, तो हम किनारे लग सकते हैं। अगर इस दौलत को हमने दिलो दिमाग के अंदर उतार लिया, जैसे पानी से कश्ती भर जाती है, फिर वो डूबना ही होता है, गर्क ही होना होता है, तबाह बर्बाद ही होता है। फिर मंजिल पर नहीं कोई पहुंच सकता। मंजिल पर वही पहुंचेगा जो इस पानी की कश्ती को पानी के ऊपर रखे और उसमें पानी दाखिल ना होने, उसके नीचे रहे। कितनी खूबसूरत मिसाल देके समझाया गया। और ये बात हकीकत है, तमाम अंबिया के आप वाक़यात देखें, कुरान ने उनको मुतरफीन कहा है कि खाते पीते लोग, अशराफिया, इलीट, जो अपने आप को बहुत ज्यादा सियाने, फख्र गुरूर के मारे हुए, महल्लात और दौलतें, वो आम इंसानों को इंसान ही नहीं समझते। उन्हीं बदबख्तों ने नबियों को भी ठुकराया। नबियों के बाद अगर कोई हक परस्त खड़ा हुआ तो उनको भी ठुकराया। अपने मुल्कों में देख लें, जितने दौलतमंद लोग हैं, बड़े बड़े सरमायादार और जागीरदार, वो मजहब से किस किस कदर बेजार है। हत्ता के बाज पोश इलाकों में इन मुतरफीन ने लाउड स्पीकर पर अजानें भी बंद कराने की कोशिश की कि हम सोए हुए होते हैं और हमारी नींद में खलल पड़ता है। ये है वो मुतरफीन, ये है वो बदबख्त तरीन लोग। अल्लाह का दीन कबूल करना, उसके लिए ये दौलत तो मत मार के रख देती है, समझ ही नहीं आने देती कि मैं किसी का पैदा किया हुआ हूं, मैंने किसी को जाके हिसाब भी देना है, अपनी दुनिया में मगन रहता है। इसलिए इस दुनिया की हकीकत को समझना बड़ा जरूरी है। वयंबगी लिल-आक़िल अन यंज़ुर फ़ी शअनिही व यअरिफ़ अहल ज़मानिही व यहफ़ज़ ख़तरा लिसानिही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद आदमी को चाहिए कि हर वक्त वो अपने बारे में गौर व फिक्र करता रहे और अपने ज़माने के बारे में गौर व फिक्र करता रहे कि गिरदो पेश क्या हो रहा है, और अपनी ज़ुबान के ख़तरात से हमेशा उसको महफूज रखने की कोशिश करे। यानी मोमिन जो है, एक तो वो अपने नफ्स की इस्लाह की हर वक्त फिक्र में रहता है, दूसरा वो बुद्धू बन के दुनिया में नहीं रहता है बल्कि हालात पर पूरी नजर रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब जाके इस्लामी रियासत कायम करते हैं तो इस कदर बेदार मगज थे
कि पल पल की दुश्मन की खबर आपको पहुंच रही है। इंटेलिजेंस का निज़ाम इतना ज़बरदस्त आपने कायम किया था कि दुश्मन अभी सोच ही रहा होता था तो आप उस पर कार्रवाई कर डालते थे। ये थे वो पैगंबर जो अपने ज़माने के हालात पर पूरी नज़र रखे हुए थे, सिर्फ मस्जिद में गोशा नशीन होकर नहीं बैठे हुए, पूरी दुनिया पे नजर थी। इसी तरह हुजूर को मानने वालों पर जरूरी है कि वो अपने आप को भी पहचाने और अपने दुश्मनों को भी पहचाने कि कौन मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ क्या क्या साजिशें कर रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इज़ा वुसिफ़ ली रजुलन लहू इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन व लैसा लहू आदाबुन नास ला अतअस्सफ़ु अला फ़ौति लिक़ाइह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस फरमाते हैं कि मुझे किसी आदमी का पता चले कि उसके पास तमाम पहले लोगों का और बाद के लोगों का इल्म मौजूद है, बहुत बड़ा आलिम, लेकिन उसे आदाबे नफ्स नहीं आते हैं, तो मुझे उससे मुलाकात ना करके कभी भी पछतावा नहीं हो, अफसोस नहीं हो। बज़ाहिर उसके पास इल्म के खजाने थे, लेकिन मैं उसके पास वो खजाने लेने नहीं गया। वाइज़ा समिअतु बिरजुलिन लहू अदबुन नास अतमन्ना लिक़ाअहु व अतअस्सफ़ु अला फ़वाति लिक़ाइह। लेकिन जब मैं किसी आदमी के बारे में सुनता हूँ कि वो आदाब ज़िंदगी से वाकिफ़, अपने नफ्स के आदाब से भी वाकिफ़, मुझे उससे मिलने की बेतहाशा तमन्ना रहेगी, और अगर मैं जिंदगी में उसे न मिल सका तो मुझे इसका पछतावा रहेगा। बाज़ लोग हजरात जिंदगी में ऐसे होते हैं कि जिनको मिलना इंसान अपनी जिंदगी की सादत समझता है। मुझे जाती तौर पर इस दुनिया में 3-4 आदमियों से मिलने की तमन्ना थी बचपन से, जब से मुझे उनका पता चला। शेख बिन बाज मुफ्ती आज़म सऊदी अरब रहमहुल्लाह, मैं उनके हालात जब मैंने पढ़े तो मुझे जिंदगी भर तमन्ना रही काश मैं इस आलिम को कभी सऊदी अरब यहाँ गया, यहाँ से उम्रे के लिए सन 97 में, लेकिन उम्रे पर जाने वाला तो उनसे नहीं मिल सकता, वो तो रियाद में रहते हैं। वहाँ सऊदी दोस्त मेरे जिद्दा में, उन्होंने कहा कि आप ठहरे, वो कभी ना कभी ज़रूर यहाँ चक्कर लगाते हैं मक्का मुकर्रमा। मैंने कहा जी मेरा तो वीज़ा 15 दिन का ही ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मेरा वीज़ा भी बढ़वा दिया 1 महीने। मेरी मुलाकात उन्होंने शेख बिन सुबैल रहमहुल्लाह से भी करवाई। उनके दफ्तर में इमाम हरम मक्की खाना काबा में, जिन्होंने 40 साल इमामत करवाई थी। मेरे लिए आज जब भी मैं सोचता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं इतने बड़े आलिम से मिला। और उन्होंने मुझे बिठा के काफ़ी चीज़ें पूछी, बातचीत की, और फिर चलते हुए मुझे फतावा इब्न तैमिया इतना बड़ा सेट 37 जिल्दों का उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, हमारे पास मौजूद है। बिन बाज रहमहुल्लाह का दुआ करता रहा कि या अल्लाह कभी उनका चक्कर लग जाए। मेरे दोस्त ने फिर एक दिन बताया कि जी वो मक्का मुकरमा किबार उलमा की मीटिंग में आ रहे, तो इंशाल्लाह अब हम उनके नाम से मुलाकात।
बहरहाल वो आए, उन्होंने फ़ोन पे उनसे मेरा टाइम लिया और मैं उनके घर जाके जब उनसे मिला, उनको मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। बहुत बड़ा घर है मकाम करमा में, चारों तरफ सोफे लगे हुए, बड़े बड़े शयूख बैठे हुए मुलाकात के लिए। लेकिन वो मर्द दरवेश जिसे मैं मिलने गया था, दुबला पतला, आंखों की बीनाई नहीं है, नाबीना है, आम सा लिबास पहना हुआ, आम सा, यकीन मानिए उस पूरी मजलिस में अगर अदना लिबास था तो शख्स आलिम इतना बड़ा, अब शायद कोई 30 जिल्दों के करीब उनका फतावा अरबी जुबान में शाये हो चुका है। उनके पास बैठकर, उनके बराबर में भी, फिर मैं नीचे इस सोफे से उतरकर उनके पाँव में बैठ गया। उन्होंने जो नसीहतें की वो हमारे पास ऑडियो कैसेट में मौजूद है। मेरे लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह सादत की बात है, अल्लाह ने मुझे फजल फरमाया कि इतने बड़े आलिम दीन से मेरे लिए ये ज़िंदगी की एक सादत है। तीसरे एक आलिम जिनको मैं मिल नहीं सका और हसरत ही रह गई, वो अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह, जो इस ज़माने के सबसे बड़े मुहद्दिस, जिनको हदीस के रावियों पर इतनी दस्तरस हासिल थी जैसे पुराने ज़माने के मुहद्दिसीन हदीसों को लाखों की तादाद में सनद के साथ याद रखते थे, वो कैफियत अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह। लेकिन अफसोस कि मैं उनको ना देख सका ना मिल सका, बस इंटरनेट पे उनको देखा सुना। इसलिए कोई आदमी वज़ीर आज़म को मुसाफा कर ले, वो उसी कोई फ़ख्र समझता लोगों को बताता। मेरे लिए ये फ़ख्र की कोई बात नहीं। मेरे लिए तो फ़ख्र की ये बात है कि दीन शरीयत का जितना बड़ा आलिम होगा और मुत्तकी और परहेज़गार होगा, उससे मिलना मेरे लिए साथ है। तो आप भी कोशिश किया करें कि दीन का इल्म रखने वाले जो हैं उनसे मुलाकात, उनसे कोई नसीहत हासिल करें, कुछ उनसे सीखें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यंबगी लिल आक़िल अल्ला यकून शाखिसन इल्ला फी सलास। हाँ, चौथे आदमी जो आज मेरे लिए फ़ख्र की बात है मुलाकात के लिए, वो सैयदा गुलाला मौदूदी रहमतुल्लाह। मेरी 2-4 मुलाकातें उनकी लाहौर में और उनके घर पे भी। ये भी वो शख्सियत है कि मैं फ्लोरिडा में भी रहा, यहाँ भी रहा, कुवैत का कोई आलिम आया, मिस्र का कोई आया, सऊदी अरब का कोई आया, जब उनसे मुलाकात हुई, तारुफ हुआ, तो उन्होंने मौलाना मौदूदी का मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मैंने उन्हें देखा भी और मैं मिला भी हूँ। तो वो इस पर बड़े खुश हुए और मुझे बार बार जफियाँ डालने लगे कि अच्छा आपने उन्हें देखा था, आप उनसे मिले थे। तो ये कैफियत हमें तो कदर नहीं है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो अहले इल्म को जौहरी रा जौहरी मी शनासत, जौहरी को ही जौहरी पहचानता है, जाहिल को क्या खबर। अहले इल्म का पता अहले इल्म को होता है। यंबगी लिल आक़िल अल्ला यकून शाखिसन इल्ला फी सलास। हुजूर फरमाते अक्लमंद आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो 3 चीज़ों पर अपनी नज़र मरकूज रखे। मरम्मतुल लिमाश, हलाल की कमाई से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने की फिक्र करता है। और खलबतुल लिमाद, या तन्हाई में बैठकर अपनी आखिरत के बारे में सोचता है। और लज़्ज़तुन फी गैर मुहर्रम, या तीसरी चीज कि जो हराम चीजें नहीं हैं, हलाल है, उनकी लज्जत हासिल करने के लिए तवज्जो करें। हलाल का खाना हो, हलाल की बीवी हो,
حلال کا جو کچھ بھی ہے اس سے لذت حاصل کرنا یہ بھی ایمان کا جز۔ وَيَنبَغِي لِلْعَاقِلِ أَن يَكُونَ لَهُ فِي النَّهَارِ 4 ساعات۔ اور عقل مند کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دن کے جس طرح 4 پہر ہوتے ہیں، 4 پہر جو 4 گھڑیاں، ان کی تقسیم کیسے کریں۔ ساعۃ ینادی ربہ فیہا، 4 پہروں میں سے دن میں ایک پہر تو اپنے رب سے بیٹھ کے کہیں سرگوشیاں کرے، اللہ سے بیٹھ کر تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرے، اپنے دل کے پھپھولے اللہ کے سامنے پھوڑے۔ وساعۃ یحاسب فیہا نفسہ، دن کی 4 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے دن بھر میں کیا کیا نیکیاں کی ہیں، کیا کیا گناہ کیے، اپنا محاسبہ۔ وساعۃ یاتی فیہا علی اہل العلم والدین الذین یبصرونہ امر دینہ وینصحونہ، تیسری گھڑی جو ہے دن کی وہ اس بات پر صرف کرے کہ علم اور دین رکھنے والے آدمی کے پاس جائے جو اس کو دین کا علم سکھائے اور اس کو نصیحت کرے، اس کو دین کے حوالے سے خیر خائی کی باتیں بتائے۔ وساعۃ فی شأنہ یخلو بین نفسہ وبین لذاتہا فیہا فیما یحل، چوتھی گھڑی جو ہے اپنے دن کی اس کو یوں گزارے کہ بیٹھ کر اپنی لذتیں جتنی وہ حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس کے درمیان جائزہ لے کہ ان چیزوں میں سے جو حلال تھی میں نے انہی کو اپنایا ہے یا ان میں سے حرام کو بھی میں نے اپنایا ہے، بیٹھ کے جائزہ لے۔ یعنی دین اسلام جو ہے یہ سراسر انسان کو اعلیٰ درجہ کا انسان ہے۔ ایک یہ جو ہم روٹین میں نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے رہتے ہیں، پھر اس میں بھی کمی کی حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ نماز بھی 5 وقت کہاں نصیب ہے بعضوں سے۔ جمعہ پڑھ کے سمجھتے گزارا ہو گیا ہے، بعض اتنے بھی بے نصیب ہیں کہ جو سال کے بعد ہی مسجدوں میں عید کی نماز کے لیے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جتنا ہمیں اپنی اصلاح کی طرف راغب کرتا ہے اور اس دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب جو آدمی 5 وقت نماز نہیں ادا کرے گا دنیا میں ہی غرق ہویا رہے گا، اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے اسے پتہ چلے گا کہ میں نے میرے اوپر میرے اللہ کے حق کیا ہیں، میرے اوپر میرے بندوں کے حق کیا ہیں؟ وہ اللہ کے حق مارتا پھرتا ہے روزانہ، وہ بندوں کے حق نہیں مارے گا۔ اصل مومن ہی وہ ہے جو ہر وقت اس بات کی فکر میں ہو کہ مجھ سے کہیں اللہ کا حق نہ چھوٹ جائے، مجھ سے کہیں کسی بندے کا حق نہ چھوٹ جائے، اسی چیز میں وہ متفکر زندگی گزارتا ہے۔ میرے دوست ہمارے نصیر صاحب بتا رہے تھے ان کی بیگم کئی سال بیمار رہ کے جو جل گئی تھی بیچاری، بتا رہے ہیں کہ آخری بھی نماز جو تھی وہ ادا کر کے دنیا سے رخ سکتی۔ مزہ تو یہ ہے کہ اللہ کا جب دنیا سے آدمی جا رہا اس کا کوئی فرض اپنے ذمہ نہ کسی بندے کا فرض اپنے ذمہ، پاک صاف ہو کر اس دنیا سے جائے، اور جانا تو ہر صورت میں ہے، بیٹھے تو نہیں رہنا۔ لہٰذا اس جانے کے حوالے سے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے، یہ عقل مندی ہے۔ اور غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا لاپرواہی سے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔
और निरे पैसे बनाते रहना और अल्लाह को भूल जाना, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। दीन दुनिया को साथ साथ चलाना जरूरी है। इसलिए हमें ये दुआ सिखाई गई, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया की भलाई नसीब कर, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत की भलाई भी नसीब कर। दोनों दुनियाओं की भलाई हमें तो चाहिए। अगर दुनिया बन जाए और आखिरत बर्बाद हो जाए, ये कोई कामयाबी नहीं। और अगर किसी की आखिरत बन जाए और दुनिया बर्बाद हो जाए, तो वो फिर भी किसी न किसी सूरत है उसकी बचने की सूरत है। लेकिन बहरहाल जिस दुनिया में रहना है, इसकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखना जायज़ तरीक़ों से, ये भी सुन्नत है, ज़रूरी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमें हर तरफ के जो हमारे ऊपर फ़राइज़ आयद किए गए हैं, उनको पहचानने और उनको अदा मरते दम तक करने की अल्लाह तौफीक नसीब करता रहे। बाक़ी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।